Hello everyone, welcome to Azmalais Academy. Today we are going to discuss the most important current affairs regarding polity and governance of the last. So let's deep dive into the topics. Our first topic is Sankalp scheme. Regarding Sankalp schemes, regarding the report that has been given by Comptroller Auditor General of India, Public Accounts Committee also has taken some steps or has given some suggestions or have given some reports. It actually shows that the Sankalp scheme has not been implemented properly. जितना फंड मतलब एलोकेट हुआ था संकल्प स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना फंड इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ. बहुत सारा ढेर सारा फंड आइडियल बैठा रहा. इट इज़ ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक्चुअली इट इज़ ए स्किल डेवलपमेंट मतलब स्कीम है. वो स्कीम में करप्शन हुआ है वो नहीं बोल रहा है यहाँ पे. यहाँ पे ये बोला गया है कि उस स्कीम में जो पैसा एलोकेटेड किया गया था वो पूरा पैसा इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं. वो पूरा पैसा यूटिलाइज हुआ ही नहीं. ओनली 44% ऑफ द फंड्स हैज बीन यूटिलाइज. बाकी पैसा यूटिलाइज हुआ ही नहीं. It is a World Bank funded, aided, not saying that funded, but it is aided by the World Bank. But the total fund is not completely utilized by the government. So it is said that it is a highly inefficient administration regarding implementation of Sankalp scheme. So you can use this as a negative example when you need to show that administrative inefficiency is still existing in India, and it is one of the major reasons for lack of implementation in India. So you can quote this kind of example. Here recently the Sankalp scheme, it is not implemented, and the fund allocated to implementation of the Sankalp scheme, it is not fully utilized. Only 44% has been utilized. It has been highlighted by PAC on the basis of the report given by CAG. Okay, Public Accounts Committee and Comptroller Auditor General of India. So this is the topic. This is the all things that I have given it here. So here I have given you some data. How much fund has been allocated. You do not need to remember all these facts. This is not going to be asked in any exam, or you are not going to require it to write in mains. You just need to remember that this is the scheme, and it is not. It's fine. Funds are not completely utilized. Okay. टाइमलाइन क्या है वो देख लीजिए. कब मतलब लॉन्च किया गया था. इसको 2018 में लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट. इट्स गोल इज टू शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ. इट इज ए स्किल डेवलपमेंट स्कीम. ओके. मनी वाज एलोकेटेड अराउंड 44,455 करोड़. ए बिग चंक कम फ्रॉम द लोन एज ए वर्ल्ड बैंक. मैंने बोला ही है कि वर्ल्ड बैंक हैज हेल्प टू फंड द स्कीम, बट इट्स फंड्स आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. मनी नॉट स्पेंट मैंने यहाँ पे दिया है. देखिए, इन 6 years द गवर्नमेंट स्पेंड ओनली 44% ऑफ द टोटल बजट. तो आपको यहीं पे आपको याद रखना है कि कैसे क्या करना है. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी का ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है. यू कैन यूज इट इन योर मेंस. इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोर प्लानिंग हाउ टू यूटिलाइज द फंड्स. ठीक है. इसको किसने बोला है? कैग ने भी बोला है. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने भी बोला है कि इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द पोर प्लानिंग. Okay, so this is a topic that can be, it will not be directly asked, but you can use this as an example in your mains. Okay, so let's move to the next topic. This is a very interesting topic actually. Justice Kurian Joseph Committee has given some recommendations. Actually new plan for center state relations. अभी actually recent time में बहुत कुछ चीज़ें changes हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच सेंटर स्टेट का जो तसल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बेटिव फेडरलिज्म. मतलब एक कॉम्बेटिव रिलेशनशिप इज बीन एस्टेब्लिशिंग between the central government and the state government, and especially in those governments where the state government do not have the same party that is being in the central government. That is not a BJP ruled party, because right now central government is the ruling party is NDA. It is mostly headed by the BJP, Bharatiya Janata Party, and the state governments which do not rule by the party BJP party, they have tussles. Okay, so this is a good example or good suggestions that are given by Justice Kurian Joseph Committee. Actually क्या है थोड़ा background बताता हूँ मैं आप लोगों को. Regarding the South Indian states, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक टॉपिक भी बताया था कि जहाँ पे क्या हो रहा था. The governors were withdrawing from not giving the speech that they need to give in the first sitting of the first session of every year.
तो वो लोग नहीं दे रहे थे बिकॉज इन द बजट इन दैट स्पीच there are some criticism to the central government and they are saying that we do not think this is appropriate and that's why we are not going to give speech about that thing. तो इसी वजह से ये तसल भी चल रहा है. उससे पहले भी रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल बाय द गवर्नर and or reserve it for the president by using or by using pocket veto, not taking any action, gubernatorial procrastination, ये सब चीज़ें चल रहा था. These are nothing but examples of competitive federalism. इन सब के ऊपर मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी गठित किया खुद के तरफ से. उस कमेटी को शेयर किया था किसने, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने. ठीक है, अभी उन्होंने ही कुछ रिकमेंडेशंस दिया है to better health of our federal system, federal structure, कि सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है वो सही से मतलब काम करे, उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिया है. क्या क्या सजेशंस दिया है या क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. पहला प्रॉब्लम तो मैंने ये बता दिया कि रोल ऑफ गवर्नर्स मतलब इट्स ए जनरली एलिगेशन कि गवर्नर जनरली एक्ट लाइक ए एजेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. दे डू गुबर्नेटोरियल प्रोक्रास्टिनेशन, मानी बिल्स मतलब पास होने नहीं देते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट बिल हो वो पास होने नहीं देते हैं. ठीक है, तो गवर्नर्स लाइक एक्ट लाइक ए एजेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का कहना है. मनी मैटर्स, इसमें क्या पॉइंट दिया गया है, देखिए आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अभी पूरा वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जाता है, उसके बाद द टैक्स हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू वेट एंड हैज़ टू आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट कि प्लीज़ हमारा पैसा हमें दे दो. पहले तो टैक्स खुद से ही कलेक्ट करते थे, अभी भी हाँ कुछ कुछ सेक्टर्स में टैक्स खुद से ही कलेक्ट करते हैं, लेकिन इन मेजर सेक्टर्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इससे क्या है, जो फेडरल ऑटोनॉमी था वो भी थोड़ा मतलब डाइल्यूट हुआ है, ये बोलता है ये आर्टिकल. मैप चेंजेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू इज दैट कि अंडर आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. It can change the name of the states, it can divide the state into two states or divide a state into two union territories. It can change the boundaries of the state. Hope you have studied that things. I have taught you in the class. Yeah, by using Article 3 and 2 also, the parliament can redraw the political map of India. Now this is also issue कि इसको change करने के लिए parliament to change the name of a state or to the boundary of a state, you do not require the consent of the state. It has been given by the constitution कि आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका व्यू लेना है, but that view is not binding on the president and the bill can be presented after it has been given permission by the president and it requires only simple majority. Under Article 4 it has been given. So that is a issue कि एक स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, एक स्टेट का बाउंड्री आप चेंज कर रहे हो, लेकिन यू डू नॉट रिक्वायर कॉन्सेंट ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर. एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब राज्यसभा से आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा से ही सिंपल मेजोरिटी, ऐसा नहीं. दोनों हाउसेस में ही आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए. एंड इफ ए गवर्नमेंट इज अ रूलिंग गवर्नमेंट देन दे जनरली एंजॉय द सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस. सो दैट इज वन ऑफ द इशू दैट इज बीन हाईलाइटेड बाय दिस आर्टिकल. एजुकेशन एंड हेल्थ रिगार्डिंग द नीट मेडिकल एग्जाम, जो लोकल सीट्स वगैरह होना चाहिए वो भी थोड़ा मतलब इशू है उसमें, वो भी एक इशू है. एंड दीज आर सम ऑफ द इशूज एक्चुअली व्हिच हाईलाइट कि आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी फ्रेजाइल राइट नाउ and the states specially which have different poles of governments, different ideological governments are there. They are raising these issues कि our autonomy is in stake, our autonomy is in danger. ठीक है, इसीलिए ये कमेटी गठित किया गया था और इस कमेटी ने कुछ डिसीजंस भी दिया है, रिकमेंडेशंस दिया है. क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया है, एक तो गवर्नर का जो पॉकेट वीटो वाला सिस्टम था उसको खारिज कर दिया गया है कि एक 15 डेज का डेडलाइन रहेगा, आपको उस डेडलाइन के अंदर आपको एक्शन लेना है. अगर आपने एक्शन नहीं लिया है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड पास. ठीक है, ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, मैंने आपको बताया भी था आप लोगों को. ठीक है, उसमें 1 महीना था, प्रेसिडेंट के लिए 3 महीना था, फिर उसने ओवररूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को. लेकिन ये कमेटी रिकमेंडेशन देता है कि 15 डेज के अंदर द गवर्नमेंट शुड टेक द डिसीजन. ओके, otherwise it will be considered as pass.
बाउंड्री चेंजेस के लिए अभी स्टेट का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। पहले व्यू लेना चाहिए था, व्यू इज नॉट बाइंडिंग, अभी परमिशन लेना पड़ेगा आपको, यानी था कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट। लॉ मेकिंग, मेक इट हार्डर द सेंटर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, फॉर बिग चेंजेस 2/3 ऑफ ऑल स्टेट्स मस्ट एग्री। अभी देखिए क्या हुआ है, अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड into by following two procedure. One requires special majority, one requires special majority plus half of the state ratification, and the third procedure which is not under article 360 require only simple majority. अभी ये सजेस्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाना है उसको चेंजेस लाने के लिए थोड़ा टफ कीजिए, मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, तो मेक इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जस्ट लाइक यूएसए। मेक दैट रिजिड दैट कि आपको कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो 2/3 स्टेट्स का आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये एक्चुअली कहाँ पे है, यूएसए में है। इन यूएसए इफ यू नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड द सपोर्ट ऑफ द 2/3 स्टेट्स, ठीक है, इन द पार्लियामेंट इन द सेनेट। तो ये रिकमेंडेशन देता है, तब मतलब क्या हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड एज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी नो मोर ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन एजुकेशन। Education once was in a state subject, but it was moved towards the concurrent subject by the 42nd Amendment. Then education is now a concurrent subject. So now this committee is recommending that कि education को फिर से आप क्या बनाएं, एक state subject बनाइए। Language policy. Language policy में अभी क्या बोला गया है कि use of both languages, English as well as the regional language like Assamese, Tamil, Marathi for official work instead of pushing a single language। तो यही था टॉपिक, यही था मतलब डिबेट्स। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल एक्चुअली, यू कैन यूज दिस पॉइंट्स इफ यू नीड टू गिव सॉल्यूशंस रिगार्डिंग कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। तो यू कैन कोट जोसेफ कोरिन कमिटी रिकमेंडेशंस इन योर वे फॉरवर्ड एंड गिव दिस सॉल्यूशंस। ओके, so let's move ahead to the next topic, ensuring freedom of speech in parliament। अभी देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर ये टॉपिक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया है कि अगर पार्लियामेंट में कोई कुछ भी बोले, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। आप कुछ भी बोले, इफ यू आर एन एमएलए और इफ यू आर एन एमपी, इफ यू आर सेइंग समथिंग और इफ यू हैव गिवन वोट ऑन समथिंग, then on the basis of that speech, on the basis of the action, you cannot be questioned in any court। मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता है। ये क्यों बोला, ये क्यों दिया गया था, दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाज गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस बिकॉज सो दैट दे कैन से द थिंग्स फेयरलेसली विदाउट टेकिंग इनटू कंसर्न कि मतलब मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लॉयर से जड़ने का आपको ज़रूरत नहीं, जजेस से जड़ने का आपका ज़रूरत नहीं। आपको जो सही लगता है आप बोलिए पार्लियामेंट में, आपको जो सही लगता है बोलिए विधानसभा में, ठीक है। यू हैव द राइट टू डू इट बिकॉज यू आर नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, इजंट इट। लेकिन इसमें क्या हुआ है, कुछ इश्यूज हैं, मतलब एक चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स which should not be used in the parliament, yeah, the speaker or the presiding officer has the power to cut down some of the words which he thinks or which she thinks which are defamatory, which are not very wise to use in the parliament, which are not very socialistic। उस वर्ड्स को निगेट करने का क्षमता प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। निगेट करने का क्षमता मतलब कि जब स्पीच दिया जाए उस स्पीच में से मतलब जो शब्द प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि दिस वर्ड्स आर नॉट वेरी गुड और दीज आर वायलेटिंग द पार्लियामेंट्री रूल्स, उन सबको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा एंड दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। एंड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होगा वो प्रेस रिलीज नहीं कर सकता है। ऐसे तो मीडिया कैन रिलीज द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वही प्रेजेंट किया जा सकता है मीडिया के द्वारा। अगर जो वर्ड्स काट दिया गया है वो वर्ड्स नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं मीडिया। तो अगर वो जो वर्ड्स काट दिया गया बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उन सबको अगर मतलब मीडिया कैनॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सिटीजन्स, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि सिटीजन्स विल नेवर नो
that what actually their representative has said in the parliament. So freedom of speech and expression तो है, लेकिन लिमिटेड भी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन रेस्ट्रिक्शन कैसे, आप अगर आपने मिस यूज किया सपोज, तो जनता को पता ही नहीं लगेगा कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला क्या है, सही बोला हो गलत बोला हो कुछ भी बोला हो, मतलब है ना। तो दिस इज द डिबेट एक्चुअली रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए आर्टिकल 105, इट सेज दैट नो एमपी कैन टेक टू एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग से और वोट इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आर्टिकल 121 ऑल्सो इज सेज दैट कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजेस हो, उनके खिलाफ, मतलब उनके जो बिहेवियर है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली अपार्ट फ्रॉम व्हेन देयर रिमूवल प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये आर्टिकल 121 ये बोलता है। ये दोनों आर्टिकल यू कैन यूज इट इन योर in 105 and 121, you can use it as an example of separation of power. This is nothing but separation of power. अभी इंटरनल फिल्टर क्या है कि आप वही मैंने बताया कि रूल 380 जो है, मतलब अंडर रूल 380 एक्चुअली उसको एक्सपांड किया जा सकता है, मतलब जो वर्ड्स मतलब डिफेमेटरी है, ठीक है, इनह्यूमन है या अनसोशियल है, एंटी नेशनल है, कुछ भी हो, मतलब उन सबको काटा जा सकता है, उन सबको डिलीट किया जा सकता है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आएगा, वो रूल 380 पावर देता है, ठीक है। तो यही था पूरा टॉपिक कि मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर द वॉइस ऑफ पीपल। अगर उनका शब्द काट दिया जाए तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये भी सही है कि आप कुछ भी बको, और parliamentary as a parliamentary you should not use those words, and if they get published in the media, then as a parliament the stature of the parliament will be degraded। ये भी एक पॉइंट है ना। तो you need to maintain the balance। तो let's move to the next topic, bonded labor in India, why rescue is only the first step। अभी क्या हुआ है देखिए, उड़ीसा में many tribal families of Orissa were rescued after being trapped for years in Bilkins। तो उन सबको रेस्क्यू किया गया है, ठीक है। बट इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि रेस्क्यूइंग देम इज नॉट एनफ। रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन उनका सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा होता है कि वो फिर से उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी बॉन्डेड लेबर मतलब क्या है कि विदाउट पेड यू आर बीइंग वर्क्ड, ठीक है। आप मतलब इट्स लाइक ए फोर्स लेबर, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स लेबर। आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है, गोइंग अगेंस्ट योर विल। आपका मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से उधार लिया है, यू आर बिलोंग टू ए पोर फैमिली, आपने कहीं से उधार लिया है, और जब उधार लिया था आपने, जिससे उधार लिया था उसने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगा दिया, तो आप पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ना उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पा रहे हो, ना उनका इंटरेस्ट रेट आप पे कर पा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ओनर जिसने आपको मतलब पैसा दिया था, वो बोलेगा, मनी लेंडर आपको बोलेगा कि एक काम करो, तुम तो पैसा नहीं दे पा रहे हो, तुम मेरे यहाँ पे आके काम करो। और आप आगे काम करने के लिए, और आपका जो वेज है वो बहुत कम है, और उस वेज से आपको जो पैसा देना है वो पैसा आप दे भी नहीं पाओगे। तो इट्स बिकम ए ट्रैप, मतलब आप कभी निकल ही नहीं पाओगे वहाँ से। इसी सिस्टम को बोला जाता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है। इसी चक्कर में आप अपना ज़मीन भी खो दोगे, सब कुछ खो दोगे, और इसी चक्कर में क्या होता है कि मतलब आप अपना फैमिली को भी इन्वॉल्व कर देते हो। ऐसा भी होता है, मतलब इट्स वेरी क्रूएल एक्चुअली, इट इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव कि बहुतों का फैमिली को ही बॉन्डेड लेबर बनाया जाते हैं, मतलब, ठीक है। और एक इंसान को हॉस्टेज बनाया जाता है कि बाकी सब ना मतलब भाग ना जाए, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो नो कि टू मच एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन दिस पीपल इन द नेम ऑफ मनी। वो पूरा फैमिली भाग ना जाए, इसलिए एक इंसान को मतलब कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन भी बहुत होता है। these are very real things that is happening right now in India। इसी को बोला जाता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। एंड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट एक्चुअली, 1.1 crore people are facing modern slavery in India at any point of time in the year।
और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक फैमिली को ही आपने बॉन्डेड लेबर बना दिया और उस फैमिली को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो इन द नेम ऑफ मनी, एंड ए पर्सन इज टेकिंग एज ए हॉस्टेज सो दैट द फैमिली मेंबर शुड नॉट एस्केप, इसको बोला जाता है हॉस्टेज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ही है ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप यूज कर रहे हो एज ए टूल, यू आर यूजिंग दैट ह्यूमन बींग्स एज ए टूल एंड यू आर अर्निंग मनी, एंड व्हाट इज your biggest weapon? That you are keeping one of the family members as a hostage and they are forced to do labor in your field, इसको बोलते हैं hostage capitalism। तो these are very exploitative in nature। तो अभी इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि rescuing the bonded labor is not enough, उनको बाकी बेनिफिट्स भी देना बहुत जरूरी है, because their social circumstances are so difficult that they again become bonded labor to someone else। वो वही मनी लेंडर के पास ना पहुंचे तो दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, वहां पे भी सेम ही सिचुएशन होगा और उनका जनरेशन बाय जनरेशन वही फेस करता जाएगा। पॉवर्टी इज अ विशियस साइकिल। जैसे वेल्थ क्रिएट्स वेल्थ, वैसे ही पॉवर्टी ऑल्सो क्रिएट्स मोर पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑल्सो विशियस साइकिल। ओके, तो ये पूरा टॉपिक है इसमें देखिए बॉन्डेड लेबर क्या है, मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, यहाँ पे डाटा वगैरह भी मैंने दिया है। दिस डाटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिट इन योर मेंस। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट, मैंने आपको बताया ही है कि एट एनी टाइम ऑफ पीरियड इन इंडिया देयर आर अराउंड 1.1 करोड़ people who are living in modern slavery, who are facing modern slavery, okay, and rescuing the bonded laborers are only temporary relief, they will again become slaves to someone else। bonded labor क्या है कि you are giving your work without the money, it is type of a forced labor, okay, it's losing your freedom because of a small loan, it's a trap। the poor family takes a small cash advance from medical emergency or a wedding। मिजरी क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरा फैमिली मिलके 15-15 घंटा काम कर रहा है, फिर भी वो इंटरेस्ट मार ही नहीं पाता है, एंड इट बिकम टू एक्सप्लॉइटेटिव। अब वो फैमिली भागना चाहता है, तभी जो मनी लेंडर है एक को हॉस्टेज बना लेता है, ठीक है, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर काम करता रहे। इसी को क्या बोला जाता है? हॉस्टेज कैपिटलिज्म बोला जाता है। आधार कार्ड वगैरह रख देते, सब कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो दीज आर हैपनिंग इन इंडिया इटसेल्फ, एक्चुअली दीज आर हैपनिंग इन इंडिया इटसेल्फ। Our GDP is growing at 8% growth rate, isn't it? We are being praised as a Goldilocks economy. We are very steady. Our unemployment rate is low. Our growth is very high. We become the 4th largest economy. But still, the paradox is that the bonded labor is still present in India, and in a very huge numbers, 1.1 crore। बहुत देशों का पॉपुलेशन इतना नहीं होता है, बहुत देशों का पॉपुलेशन 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख होता है, हमारे यहाँ पे बॉन्डेड लेबर 1.1 करोड़ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं लॉ क्या क्या है। आर्टिकल 23 ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है, इट्स गिव द प्रोटेक्शन कि आप मतलब मॉडर्न स्लेवरी वगैरह ये सब खत्म करता है, लेकिन ये कागजों में है, मतलब हाँ फंडामेंटल राइट है, लेकिन दे आर ओनली ऑन द पेपर। 1976 एक्ट बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ये 1976 में आया था, अभी 2026 है, तो ऑलमोस्ट 50 years yet to be completed, but this law's impact is yet to be seen। अभी इस लॉ के अंदर क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, देखिए कि जब मतलब रेस्क्यू होगा इमीडिएटली उसको 30,000 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर लड़का है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वुमेन है तो लड़की है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। एंड चिल्ड्रन इन फॉर द सीवियर केसेस उनको 3 लाख रुपया दिया जाएगा। वो इन लॉन्ग टर्म ऑन स्पॉट उसको कितना रुपये दिया जाएगा, 30,000 रुपीज़ दिया जाएगा। अभी ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि सिर्फ मतलब आप रेस्क्यू कर रहे हो, रेस्क्यू करने से क्या होगा, जिसने एक्सप्लॉइट किया उसको भी तो पकड़ो, उसको भी तो सज़ा मिलना चाहिए, है ना। वाई डज इट स्टिल हैपन, क्यों है अभी तक? सोशल कंपोजिशन। अभी देखिए इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली फैक्ट सामने आता है, जितने भी बॉन्डेड लेबर है उसमें से 83% आर बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब इससे डायरेक्टली ये लिंक्ड हो जाता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इट बॉन्डेड लेबर सिस्टम। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दोनों एक साथ चलते हैं।
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही चलते हैं एक साथ. बॉन्डेड लेबर, it's nothing but economic exploitation, but economic exploitation is there because of the social exploitation for hundreds of thousands of years, and because of that social exploitation, that person is in that social status, is in that economic status, that other people got the opportunity to exploit them, and they become the bonded laborers. If they have enjoyed higher social status, they could have enjoyed higher social capitals, they could have enjoyed other opportunities, other economic opportunities, and they will not be fall into the bonded labor system. But now, since their situation is very worse, economically, socially, their situation is very worse, and they have lack of opportunities, their social mobility is also very low. That's why they fall into the trap of bonded labor system. Lack of job, obviously. MG नरेगा जहाँ पे फेल हुआ है, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे फेल हुआ है, वो लोग बाहर निकल आते हैं काम ढूंढने के लिए, और काम ढूंढने के चक्कर में ही दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बॉन्डेड लेबर. पेपर वर्क्स, अभी जो बॉन्डेड लेबर है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट पर्सन इज एजुकेटेड पर्सन. उनको लिखना पढ़ना या लीगल स्टेटमेंट तो, लीगल सेंटेंस तो उनको एटलीस्ट नहीं आता होगा, तो पेपर वर्क में वो साइन कर लेते हैं एंड वो फंस जाते हैं. और जब उसको बेनिफिट भी मिलता होता है ना, तब भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उस फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट देयर, दे डू नॉट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. अभी गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट करे कि दैट पर्सन इज ए विक्टिम ऑफ बॉन्डेड लेबर? करप्शन भी तो है. ऐसे तो मतलब गवर्नमेंट किसी को, मतलब कोई जो अथॉरिटी, रेस्क्यूइंग अथॉरिटी है, वही करप्ट निकला, वो भी तो बोल सकता है ये बॉन्डेड लेबर है, इसको दो 30,000, ये बॉन्डेड लेबर है, इसको दो 30,000. ऐसा तो गवर्नमेंट कितने को पैसा देगा? उसके लिए तो आपको क्या चाहिए? वेरिफिकेशन चाहिए. वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. अभी वो लोग हैं गरीब, तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करके देंगे आपको? तो इट्स ए विशियस ट्रैप एक्चुअली. स्टेट डिनायल, बहुत स्टेट ये डिनाई ही करते हैं कि हमारे स्टेट में तो फोर्स लेबर है ही नहीं, बॉन्डेड लेबर है ही नहीं, तो कहाँ से मतलब ये निकल के आएगा? ठीक है. समटाइम्स द स्टेट वेयर फैक्ट्रीज were located refused to admit that bonded labor exists in the and making the hard to save the victims. पहले प्रॉब्लम को मानोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? जहाँ पे वो फैक्ट्रीज है, मतलब जो ये फैक्ट्रीज जहाँ पे है, मतलब इस फैक्ट्रीज में क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है. ठीक है. आसामी में जिसको ईटा भट्टा बोलते हैं ना, बिल्किन. ठीक है. तो वहाँ पे आपको रखा गया है, और स्टेट बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसा फैक्ट्री, मतलब ऐसा बॉन्डेड लेबर सिस्टम है ही नहीं, तो आप रेस्क्यू कैसे करोगे? यू विल नॉट गेट हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये भी इशू है. तो इसको सोल्व कैसे किया जाए? कि आपको यूनिफाइड नेशनल डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए. जस्ट टू ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन, वी शुड ट्रैक ऑल्सो द बॉन्डेड लेबर्स. ऑटोमेटिक रिहेबिलिटेशन जब मिल जाए, मतलब जब रेस्क्यू हो जाए, ऑटोमेटिकली आप 30,000 रुपये दीजिए. ठीक है. एंड एक सर्टिफिकेट दीजिए, रिलीज सर्टिफिकेट दीजिए. ठीक है. इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. फ्री HPV वैक्सीन्स. अभी देखिए ये वैक्सीन क्यों न्यूज़ में है. रिसेंटली ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को फ्रीली अवेलेबल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. ये वैक्सीन एक्चुअली किसको प्रिवेंट करेगा? It will prevent cervical cancer, which is the second most important cause of cancer for women in India and in the global stage also. The first most important cause is the breast cancer, and the second is the HPV, cervical cancer. उसको सोल्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन लाया गया है. एंड गवर्नमेंट इज गिविंग दिस टू 14-year-old गर्ल्स जनरली, एंड इट इज़ गिविंग देम फ्रीली. ठीक है. तो इससे क्या होगा? हेल्थ इक्विटी आएगा. इससे क्या होगा? हेल्थ इक्विटी आएगा. मतलब इक्विटेबल, इक्वल हेल्थ एक्सेस टू एवरी वुमेन. ठीक है. तो HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज ए कॉमन वायरस. व्हाइल मोस्ट टाइप्स ऑफ हार्मलेस, इट फ्यू डेंजरस कॉजेस सर्विकल कैंसर इन वुमेन. ठीक है. इंडिया में अराउंड 80,000 न्यू केसेस आर देयर फाउंड एवरी ईयर. तो सर्विकल कैंसर इज़ अ वेरी बिग इशू एक्चुअली रिगार्डिंग वीमेन. तो उसको सोल्व करने के लिए वैक्सीन लाया गया है. एंड ये वैक्सीन है ही एक्चुअली पहले से, अभी इसको फ्रीली अवेलेबल किया गया है.
so that the daughter of a farmer also can enjoy this kind of vaccines and she gets safe from the dangerous cervical cancer that may happen in future. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। राजस्थान स्क्रैप्स 2 चाइल्ड इलेक्शन बैन। अभी देखिए क्या हुआ है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग रिगार्डिंग राजस्थान। 30 साल पहले एक लॉ लाया गया था व्हेन द पंचायती राज वाज देयर was started. Actually, Panchayati Raj system was first implemented in Rajasthan. You know that thing in 1956, I think. But when it is constitutionalized in 1992, a new law was there. According to that law, कि एक 2 चाइल्ड नॉर्म मतलब उसमें डाला गया था कि वही लोग इलेक्शन खेल सकते हैं, पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शन खेल सकते हैं जिसका मतलब टोटल चिल्ड्रन 2 से ज़्यादा नहीं है। 2 चाइल्ड नॉर्म मतलब, ठीक है, इसको लाया गया था टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके वजह से इसको लाया गया था, लेकिन अभी इसको विथड्रॉ कर लिया गया है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज। एक इश्यूज नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑफ वेरियस सक्सेसेस बोलेंगे। पहले जो TFR था इट वाज अराउंड 3.84, मतलब ए वुमेन इज गिविंग बर्थ टू अराउंड 3.84 एवरेज child in her lifetime. Now right now the TFR is reduced to 2 or 2.1. 2.1 is the replacement area. Rajasthan has almost achieved 2 TFR. तो now population is almost controlled. तो 2 child ban जो था राजस्थान में पहले, वो अभी नीट नहीं है उसका, इसी वजह से मतलब उसको अभी हटा दिया गया है। तो थोड़ा देखते हैं इसी टॉपिक को। Old rule since 1995, any citizen having more than 2 children was strictly banned from fighting local village or city election, मतलब पंचायत इलेक्शन या म्यूनसिपल इलेक्शंस। सेंस क्या है वह है, the government feels this rule is now outdated since new bills will be passed allow everyone fight to local election regardless of their family size. अभी जो कैबिनेट है, राजस्थान कैबिनेट है, तो कैबिनेट हैज टेकन द डिसीजन कि ये जो 2 चाइल्ड नॉर्म था उसको हम लोग हटा रहे हैं। अभी उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा, बिल वो पास भी हो जाएगा ऑब्वियसली, और तब वो लॉ बन जाएगा, तब एवरीबॉडी कैन फाइट इलेक्शंस। आपके जितने भी बच्चे हो इट डजंट मैटर, ठीक है। फॉर विलेजर्स राजस्थान पंचायत एक्ट 1994, फॉर सिटीज राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट 2009। तो इसको ये इस बिल दोनों बिल को रिमूव किया जाएगा। अभी क्यों हटाया गया है, टारगेट अचीव हो गया है, क्योंकि पहले 3.6 था। मैंने थोड़ा दूसरा एक डाटा बोलता है कि 3.84, बट in this data 3.6 TFR was there, but right now it is dropped to 2. तो अभी फोर्स चाहिए नहीं, we do not need legal force कि बच्चे कम पैदा करो। Now people are aware, so they are producing less and it is a very good ratio actually, and we are going to discuss कि replacement rate क्या है। Actually एक देश में हमेशा ही TFR total fertility ratio 2.1 should be there. It is a good ratio. अगर वो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि द पॉपुलेशन विल बी सस्टेन, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो सस्टेन करेगा। लेकिन 2.1 के नीचे अगर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन विल डिक्लाइन एंड द कंट्री विल फेस इशू ऑफ ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इशू है, अभी जो जापान फेस कर रहा है, रशिया फेस कर रहा है, यूक्रेन फेस कर रहा है, ठीक है, वो अभी चाइना इज ऑल्सो फेसिंग, देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। Okay, when your population is declining, your human capital will decline, and that's not a very good sign for economy. So India definitely do not want that. Obviously, we also do not want population explosion, but we want to maintain the TFR is 2.1, 2.1. Right now we have TFR 2, but its issue is that our TFR is so much volatile. In Bihar it is 3.5. Okay, in Rajasthan it is 2. In southern state it is around 1.8, 1.6. So it is very volatile. It's state to state differ. So one nationalistic policy I don't think will be very beneficial for the states. States should take their own steps, and on the basis of that they should control the population, and Rajasthan has done that, and that's why this population the rule regarding fighting elections on the basis of children has been moved out, ठीक है। तो ये क्या रिजॉल्व करता है, इट शोज द ट्रू डेमोक्रेसी इज देयर, पॉलिसी शिफ्ट शुड बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया रखा है कि TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, एक वोमेन एक पूरे मतलब जीवन काल में कितना बच्चा पैदा करते हैं उसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट रेट 2.1, मतलब इससे क्या होगा, पॉपुलेशन सस्टेन करेगा, ठीक है। द लास्ट article, last topic of this
सेशन इज सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एनसीईआरटी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है देखिए, एनसीईआरटी ने एक स्मॉल आर्टिकल छपा था, मतलब क्लास 8 के मतलब टेक्स्ट बुक्स में, उसमें एक दिया गया था जहाँ पे मतलब जुडिशरी को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। वहाँ पे करप्शन है, मतलब कुछ कुछ इश्यूज मतलब हाईलाइट किया गया था। तो वो कोर्ट को अच्छा नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी अपसेट and the bench headed by our respected Chief Justice of India, he said that it is very upsetting and it should not be there. And after that, NCERT actually stopped publishing that copies, and they are also taking back the copies which have already been sold. सॉफ्ट कॉपी अभी अवेलेबल नहीं किया है, उसको हटा दिया जाएगा, मतलब ठीक है, उसको हटा के नया बुक प्रिंट किया जाएगा। अभी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये कोर्ट को क्या क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्या वहाँ पे मतलब देयर शुड नॉट बी क्रिटिसिज्म फॉर द कोर्ट्स, या क्रिटिसिज्म करने से क्या इशू होगा, या मतलब जो ये चैप्टर था उसको क्यों हटा दिया गया, या रहने से क्या इशू होता, वही हम लोग देखते हैं। अभी देखिए हम लोग देखते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मतलब ये जो हटा दिया गया है ये सही है ये गलत है। अभी देखते हैं कि सही क्यों है। रोल ऑफ स्कूल्स क्या है, टेक्स्ट बुक्स विल टीच चिल्ड्रन हाउ आवर कंट्री वर्क्स। इफ ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक शोज डार्क पिक्चर ऑफ द जुडिशरी, द प्रोटेक्टर ऑफ आवर राइट्स, इट कैन डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इन द लॉ। तो कोर्ट्स के ऊपर क्या होगा, जो ट्रस्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो इट मे वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशियरी का क्रिटिसिज्म चल रहा है, ठीक है, ये भी सही नहीं है, तो इट मे हैम्पर सेपरेशन ऑफ पावर। फेलियर ऑफ चेकिंग द इंसिडेंट शोज दैट एक्सपर्ट्स रिव्यू प्रोसेस एट एनसीईआरटी फेल्ड, सेंसिटिव कंटेंट वाज क्लियर्ड एंड प्रिंटेड विदाउट प्रॉपर चेक बाय सीनियर एक्सपर्ट्स, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेटेड ऑब्वियसली टू मेंटेन इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी। अभी आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि क्रिटिसिज्म क्यों होना चाहिए, या ये जो स्टेप लिया गया है ये क्यों सही नहीं है। एकेडमिक फ्रीडम इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है ना आपको, स्कूल का काम क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगा, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, by criticizing the things, by criticizing institutions. When you criticize the institutions, then only you will know the problems of the institutions, then only you can solve the problems. तो critical thinking develop करने के लिए तो बहुत important है। Constructive criticism strengthen the institution actually. It will actually highlight the issues, highlight the problems, and it will help to resolve the issues. Supreme Court itself upholds freedom of speech. Supreme Court is the protector of the fundamental rights. It is the protector of the Constitution. So freedom of speech and expression is a fundamental right. So criticism is a constructive criticism should be there, and that kind of mentality should be developed from the early age. ठीक है। Democratic education requires realism obviously. आप कोई मतलब ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड में तो नहीं रह सकते हो कि सब कुछ सही है। You need to show little bit things कि इसमें ये सही है, 90% सही है कि 10%, लेकिन इसमें ये चैलेंजेस भी है। ये दिखाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इट शोज दैट हाउ एक्चुअली रियलिटी वर्क्स, ठीक है, तभी तो मेच्योरिटी आएगा, है ना। ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जुडिशियल डिलेज है, ये सब तो रियलिटी है। एंड एक्चुअली द स्टूडेंट विल नॉट कनेक्ट दोज थिंग्स, क्योंकि उसको तो पता ही है कि जुडिशियल डिलेज है, फिल्में बनते हैं उसके ऊपर तारीख पे तारीख, तो अगर वहाँ पे लिखा होगा तो वो कनेक्ट भी कर पाएगा, एंड ही और शी विल फील इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट्स। अदरवाइज there is no connection between the textbook and the real world. That's why our education system become a flop. So this need to be improved. Global pedagogical trends. Modern civic education emphasizes questioning institutions, evidence-based evaluation, participatory citizenship. ठीक है, तो these are the things then you need to remember. ये एक बहुत important चीज़ है, constructive criticism of the जुडिशियरी। ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत ही क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ टुडे सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड these are very much beneficial for your mains especially. So hope you have enjoyed the session and hope you have noted down all the things. Thank you.